Hello, my dear students. In this class, we are going to discuss class 7th Gulmohar Golden Jubilee Edition, chapter number 11, The Play, which is written by William Shakespeare. Student, this is the last chapter of this class the 7th. After this, no video shall be uploaded from this chapter or from this class because all solution, question, answer exercises, all poems have been already discussed. All solutions have been given. It is things have been uploaded on my channel. Go to playlist and watch it if you want. Okay. So students, in this video we shall be looking for question answer on the exercises of the chapter. This is the first page, you can see, of the chapter The Play, given on page number 124. Understanding the text. Okay. See, complete this table about the play that men were rehearsing. Okay, the the actors problem, the reason, how they planned to solve it. Okay, whether actors problem, when you read the chapter you will be getting that this chapter has been taken. Let me introduce the chapter first. Student, you can see. Okay, see that we are going to read a single scene from William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Okay, students, a play which named A Midsummer Night's Dream. It is a play written by William Shakespeare. So this is a complete book, a complete drama. So in this video in class 7th, only a single scene. Okay, single scene from this drama is taken. Okay, so single scene you are going to study. So I hope that your teacher in your school must have been given explanation of your book. What happened here? A royal wedding is about to take place, that in a scene, no, in the drama, and as part of the celebration, a group of ordinary people consisting of artisans like a carpenter, a weaver, and a tailor, and so on, plan to stage a play. Okay, a royal wedding is going to happen. Okay, it is going to take place, and some celebrity is also ready to take part in that wedding, the royal wedding. You know that there are some artists. Okay, there are some artists in which a carpenter, a weaver, and a tailor, and so on, these are the characters. They have planned that they will take a play, they will stage a play. So this scene shows them beginning their rehearsal. So the actors are rehearsing in this play where the story is starting. Okay, these artisans are neither educated nor experienced in acting. Okay, so these artists, it means the, let me see, the carpenter, the weaver, and the tailor, they are not educated. Okay, not educated nor experienced in acting. Okay, and their innocent effort are shown to the humorous light. Why? Because they are amateur from the beginning. So that is why the acting of the performers have been giving you a humorous thing, that so that is why the audience becomes laughy. Okay, the rehearsal is taking place in a clearing, a community of fairies. सॉरी, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट. कहाँ पे ये प्लेस हो रहा है भाई? तो ये मिडिल ऑफ फॉरेस्ट में हो रहा है. देयर इज समथिंग एल्स गोइंग इन द फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में हो रहा है जहाँ पे कुछ अजीबी सा माहौल है, कुछ अलग ही चल रहा है उस फॉरेस्ट में. क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ कम्युनिटी ऑफ फेरीज. वहाँ पे परियों का एक समूह है, इंक्लूडिंग ओबेरॉन. और वहाँ पे ओबेरॉन भी है. ठीक है, ओबेरॉन कौन है? उनका किंग. ठीक है, टिटिनिया द क्वीन. टिटिनिया जो है वो क्वीन है. एंड अ पक. पक जो है वो, जो किंग है ना, उसका हैंडीमैन है. ठीक है, हु पोसेसेस मैजिकल पावर. अब ये जो पक है ना, इसके पास कुछ मैजिकल पावर है. एंड अ मिस्चीवियस माइंड. उसका माइंड बड़ा डर्टी है भाई. देयर हैड जस्ट बीन अ बिग क्वेरल बिटवीन ओबेरॉन एंड टिटिनिया. तो एक बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो गई है किंग और क्वीन के बीच. ठीक है, ओबेरॉन किंग, टिटिनिया एंड इन दोनों के बीच. ठीक है, तो किंग ओबेरॉन विशिंग टू टीच अ क्वीन अ लेसन. अब जो किंग ओबेरॉन है वो अपनी जो क्वीन है उसको एक लेसन, एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं. क्या पढ़ाना चाहते हैं भाई? कुछ. दैट पक हैज़ टू पुट अ ज्यूस ऑफ अ म्यूजिकल फ्लावर ऑफ टिटेनियाज आईलाइड
वाइल शी स्लीप, ठीक है। वो चाहती है इसको मज़ा चखाऊंगा। क्या मज़ा चखाऊंगा? इसके लिए वो पक को कहते हैं ना, पक के पास तो म्यूजिकल पावर है। पक को वो कहते हैं कि पक, अरे सॉरी आई वॉज जस्ट टेकिंग समथिंग। हाँ, तो वो पक को कहते हैं कि इसको मज़ा चिखाना, इसको मज़ा चिखाने के लिए तुमको क्या करना है पक। तो वो एक मैजिकल फ्लावर होता है, ठीक है। उसका जो जूस होता है ना, ही वॉज टेकिंग द मैजिकल फ्लावर्स जूस एंड उसको कहते हैं वो टिटेनिया के आईलिड में उसको डाल देना जब वो सो रही होती है। द जूस विल मेक हर फॉल मैडली इन लव विद whoever शी सीज फर्स्ट ऑन वेकिंग अप। उस जूस का काम ये होगा कि जैसे वो अपनी आँख खोलेगी और सबसे पहले जिस किसी को भी वो देखेगी ना, तो वो उससे क्या करने लगेगी? लव करने लगेगी। शी विल फॉल मैडली इन लव, ठीक है। पागलपन वाला जो लव होता है, जिसको भी देखेगी उठ मतलब सबसे पहले आँख खोलने पे। टिटेनिया इज़ अ स्लीप वेयर द आर्टिस्ट आर रिहर्सलिंग, ठीक है। टिटेनिया वही है जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो रिहर्सल कर रहे हैं, जो परफॉर्मर्स है वो रिहर्सल कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट सीन है, बट वो उनको नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो तो अपने काम में मशगूल हैं, ठीक है। वी फर्स्ट सी आर्टिसन डिस्कसिंग मैटर्स ऑफ एक्टिंग। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो उनको क्या परफॉर्म करना है, वो उस मैटर को क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। वो स्टेज अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। देन पक डज सम मिस्चीवियस, ठीक है। पक क्या करता है, कुछ शरारती दिमाग है तो वो कुछ कर रहा है। एंड क्वीन टिटेनिया वेक्स अप, और उसी टाइम जो क्वीन है वो उठती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, आप यहाँ पे देखिए आर्टिशियंस रिहर्सिंग इन द प्ले। कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं, तो क्वींस है स्टारविलिंग, स्नग, बॉटम, स्नाउट, फ्लूट, ये जो कैरेक्टर हैं और कैरेक्टर्स हैं, ये अमेचर टेक कैरेक्टर्स हैं बच्चों। अमेचर का मतलब होता है कि इनको ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही एक्टिंग में उनको कुछ महारत हासिल है। वो छोटी मोटी एक्टिंग ऐसी बस जैसे हम कर लेते हैं, जैसे आप कर लेते हैं, ओके। दे आर नॉट द एक्टर्स, ओके। और बाकी के जो बच्चे अभी आप ये देखेंगे जो फेरीज हैं, ठीक है। फेरी सर्वेंट ऑफ टिटेनिया, क्योंकि वो लोग फेरी से बिलोंग करते हैं। जो टिटेनिया जो क्वीन है उनके सर्वेंट्स हैं। देखिए पक तो है ही है वहाँ पे, शरारत कर रहा है। और ये देखिए पीस बॉसम एक फेरी है, मौत, कोबेड और मुस्टर्ड सीड। तो ये सब क्या है, ये सब फेरीज हैं टिटेनिया की। तो इतने लोग जो हैं वो जंगल में मौजूद हैं बच्चों, जहाँ पे वो परफॉर्म मतलब जो रिहर्सल कर रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये तो आपके कैरेक्टर्स होंगे जो ह्यूमंस हैं, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, ये फेरी है, ठीक है। तो ये इनको नहीं देख रहे हैं बट दे आर सीइंग देम, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक ओवरऑल समरी आपको पता चल गई होगी। बढ़ते हैं। तो अब मुझे आपको ये बताना है बच्चों कि एक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, हाउ दे प्लान टू सॉल्व इट, कि और वो कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो वेदर टू लीव आउट द पार्ट वेयर पिरामिड ड्रॉस अ स्वॉर्ड टू किल हिमसेल्फ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये पिरामिड जो है ना, इसी प्ले का वो एक्टिंग करने वाले स्टेज पे तो अपने डिस्कस कर रहे हैं, वो ये उनकी प्रॉब्लम है। द लेडीज इन द ऑडियंस मे बी स्केयर्ड, अब वो क्या डिस्कस करें, उसका रीज़न क्या हो सकता है। वेयर टू लीव आउट द पार्ट वेयर पिरामिड ड्रॉस, जब वो तलवार खींचता है, ठीक है, स्वॉर्ड टू किल हिमसेल्फ। तो अब इससे क्या होगा, जो लेडीज़ हैं वो तो डर जाएंगी भाई। इसको इससे छुटका दे कि वो उनका दिमाग जैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो अमेच्योर है तो कैसे दिमाग काम कर रहा है वो देखिए क्या बताते हैं। रीड अ प्रोलॉग दैट वुड बी एक्सप्लेन हाउ नन ऑफ इट वॉज रियल। तो ये एक प्रोलॉग पढ़ते हैं कि वो किस तरह से एक्टिंग करेंगे, ठीक है, उसको एज अ रियल दिखाने के लिए। दूसरा है कि हाउ टू इंक्लूड द लाइन विच थिस्बी मीट्स। अब यहाँ पे आपको रीज़न देना है बच्चों, ठीक है, रीज़न देना है और यहाँ पे उस रीज़न को सॉल्व कैसे करना है वो बताना है। हाउ टू ब्रिंग द मून लाइट इन अ चैम्बर, रीज़न देना है और यहाँ पे सॉल्यूशन देना है। हाउ टू हैव अ वॉल इन अ ग्रेट चैम्बर, रीज़न देना है और सॉल्यूशन देना, ठीक है। लेट अस सी। द लेडीज़ इन द ऑडियंस में बी स्केयर्ड टू सी अ लॉयन, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेन इन अनदर प्रोलॉग दैट इज़ नॉट अ लॉयन, ठीक है। एक्सप्लेन में पहले ये एक्सप्लेन जो भी प्रोलॉग है ये एक इंट्रोडक्शन होता है बच्चों। इस प्रोलॉग में पहले वो इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ये जो लॉयन है ये एक असलियत का लॉयन नहीं है, दैट इज़ द लॉयन इज़ नॉट इन रियल, ओके। अब इसका पार्ट 1 हो गया। दूसरा जो सोल्यूशन है, द एक्टर मस्ट पीप आउट ऑफ द कॉस्ट्यूम एंड एक्सप्लेन
दैट इट इज़ नॉट रियली अ पीप आउट करेंगे, ठीक है, कॉस्ट्यूम पहने रहेंगे, वो कॉस्ट्यूम के वो हटा देंगे और फिर धीरे से बताएंगे कि मैं देखिए ये आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तीसरी का क्या है, पहले अकॉर्डिंग टू द प्ले पिरामिड्स एंड थ्योरी मीट मूनलाइट, मीट बाय मूनलाइट। अब इनका जो प्ले है, जिनको जिस भी प्ले को वो स्टेज करने वाले हैं बच्चों, उसमें क्या है कि जो पिरामिड्स जो किंग है और थ्योरी जो क्वीन है वो मीट होने वाले हैं, मतलब वो मिलने वाले हैं मूनलाइट में। तो इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, लीव वो केसमेंट ओपन सो दैट द मूनलाइट कम्स ऑन, ठीक है। वो जो केसमेंट है वो उसको वो ओपन कर देंगे कि मूनलाइट जो है वो अंदर आए। और जो दूसरा द एन एक्टर कैरिंग अ बश ऑफ थ्रॉन्स लाएंगे, अ लैंटर्न कुड रिप्रेजेंट द मूनलाइट, ठीक है। इस तरह से वो सोल्यूशन देना, लैंटर्न ला सकते हैं। तीसरा का अकॉर्डिंग टू द स्टोरी पिरामिड्स एंड थ्योरी टॉक थ्रू अ चिन इन अ वॉल, ठीक है, टॉक थ्रू अ चिन इन अ वॉल, ये करने वाले हैं वो स्टेज पे, ठीक है। एन एक्टर रिप्रेजेंटिंग अ वॉल विल होल्ड हीज फिंगर्स सो एज टू सिग्निफाई अ होल, वो एक होल दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट था। बी पार्ट में देखते हैं कि आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को चलिए देखते हैं बच्चों। वेयर डिड द एक्टर्स मीट फॉर द रिहर्सल, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दे मीट इन साइड द वुड, ठीक है, वो उस फॉरेस्ट में रिहर्सल के लिए इकट्ठा होते हैं। वाई डिड दे थिंक इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस, ठीक है, वो उनको एक सुटेबल प्लेस क्यों लगता है। सो इट इज़ बिकॉज द ग्रीन प्लॉट कुड बी देयर स्टेज, क्योंकि एक उनका जो एक प्लॉट करने वाले हैं स्टेज के जो वो भी जो भी ड्रामा वो प्ले करने वाले हैं उनके लिए एक ग्रीन प्लॉट चाहिए। द हर्थ थ्रोन ब्रेक कुड सर्व एज द ग्रीन रूम, एज देयर ग्रीन रूम, ठीक है, एक रूम होगा लगभग लाइक अ ग्रीन, एंड दे कुड रिहर्स एज दे वुड हैव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्री, ठीक है। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वो जो ड्यूक है ना, जो भी हमने पढ़ा अभी पिरामिड्स, कि वो उसके सामने रिहर्सल कर लें, मतलब एवरीथिंग शुड बी लाइक रियल, ठीक है। वो दैट इज़ वाई दे चूज अ प्लेस like that, and that place is somewhere convenient to them. Now दूसरा देखते हैं, a stranger pyramids than air plays here, who was Puck referring to, पक यहाँ पे किसको रिफर कर रहा है, तो पक जो है वो बॉटम एक कैरेक्टर है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, वो उसको रिफर कर रहा है। बॉटम वॉज प्लेइंग पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स का रोल करने वाला है वो। व्हाट मिस्टेक डिड द एक्टर मेक, क्या मिस्टेक वो एक्टर करता है, तो बॉटम मिक्सड अप द वर्ड्स ऑर्डर्स एंड ओडियस वाइल सेइंग दिस लाइन, जब भी वो अपनी लाइंस को वो रिहर्स करता है तो वो ऑर्डर्स वर्ड को ओडियस वर्ड्स में मिक्सअप कर देता है, जो जिससे वो उसकी एक मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आई सी देयर नेवरी, this is to make an ass of me, to fright me if they could, but I will not stir from this place. Do what they can. Paragraph 42. Who is the speaker? Why did you think the others were making us ass of him? Ass of यहाँ पे गधे की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए, द स्पीकर इज अ बॉटम, यहाँ पे जो बॉटम है वो बोल रहा है, पक चेंज्ड हीज हेड इनटू द हेड ऑफ एन, देखिए उसको तो लॉयन का हेड लगाना था, बट अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उस फॉरेस्ट में पक भी मौजूद है, और पक का माइंड कैसा है, एक मिस्चीवियस माइंड है, ठीक है, वो उसके पास मैजिकल पावर है। उसको तो लॉयन का जो एक मुँह लगाना था ना, कि हाउ, मैंने आपको बताया कि प्रोलॉग में वो अपना पीप आउट करेगा, वो बताएगा इट इज़ नॉट अ रियल लॉयन, ठीक है। तो उसको तो ये कहना था, बट ये पक की जो मिस्चीवियस है वो क्या है, ये शरारत करता है कि उसको लॉयन के हेड की जहाँ पे वो एक गधे का हेड उसको लगा देता है। व्हेन ही री एंटर्ड अकॉर्डिंग टू हिज क्यू, ठीक है, जब अपनी वो लाइन से वो री एंटर होता है, द अदर्स वर स्केयर टू सी हिम, बाकी के जो कैरेक्टर्स होते हैं सब डर जाते हैं उसको देख के, विद एन एस हेड एंड रन अवे, डर के मारे भाग जाते हैं, ठीक है। दे केम बैक वन बाय वन टू टेल हिम दैट ही वॉज चेंज्ड, वन बाय वन वो आते हैं बताते हैं कि अरे तुम तो बदल गए, तुमको तो ऐसे नहीं ऐसा होना था, बट बॉटम डिड नॉट बिलीव एंड अंडरस्टैंड देम, बट बॉटम को ये बातें समझ में नहीं है, क्योंकि वो तो खुद को नहीं देख रहा है ना। ही थॉट दैट दे आर ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ हिम, और वो क्या समझता है कि वो सारे कैरेक्टर्स उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके यस बोलिए, और इसी तरह से मैं बाकी के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। बट अगर आपको समझ में आ रहा है, जितने भी आपके कमेंट्स होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कमेंट ओनली, ओके। और आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिए कमेंट में। चलिए, वॉज द स्पीकर फ्राइटन्ड, ठीक है,
क्या जो स्पीकर हुआ वो डरा? येस, बॉटम वॉज रादर फ्राइटेंड बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। वाई द एक्टर्स आर बिहेविंग सो स्ट्रेंजली एंड रनिंग अवे फ्रॉम हिम। ये सारे एक्टर्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं और ऐसे क्यों मुझे देख देख के भाग जा रहा है। What did the speaker decide to do and why? ठीक है, क्या वो डिसाइड करता है? Bottom decided not to move from the place no matter how oddly the others behave. ठीक है, उसको ये नहीं लगता है कि he decided to walk up and down right there and sing so that the others could hear him and know that he was not frightened. ठीक है, वो क्या डिसाइड करता है कि वो वॉक करेगा वॉक डाउन राइट देयर टू सिंग। ठीक है, वो सारे मतलब जो भी उसको बोलना है वो बोलेगा और लोगों को बताएगा कि जैसा वो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, और वो ऐसा डरावना नहीं लग रहा है कि मतलब वो तो ये समझ रहा है ना कि वो एक शेर जैसा फेस जो है वो उसका जो उसके ऊपर जो हेड है वो शेर का है, तो इसकी वजह से लोग डर रहे हैं। तो वो लोगों को समझाएगा, बात करेगा और लोगों को बताएगा कि वो ऐसा कोई डरावना नहीं है। पक अफेक्टेड बॉटम बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हाउ डिड ही डू दैट? देखिए, पक ने अफेक्ट तो किया ना, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाई वो तो नहीं जाने, क्योंकि वो तो एक मैजिकल पावर है, वो ह्यूमंस तो है नहीं कि पक वो जो भी बॉटम है और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में उनको पता है, वो तो उनको देख भी नहीं रहा। लेकिन पक ने तो अफेक्ट कर दिया ना, अफेक्टेड बैडली। देखिए, पक चेंज्ड बॉटम सेट इनटू दैट एज एन एस। ठीक है, शेर के हेड को उसने गधे के हेड में बदल दिया। दैट वॉज हाउ ही अफेक्टेड हिम डायरेक्टली, और डायरेक्टली उसको अफेक्ट किया वहाँ पे। ओके, द अदर एक्टर्स वर स्केयर्ड ऑफ बॉटम एंड रन अवे। ठीक है, बॉटम ऑल्सो ड्रॉप द जूस ऑफ मैजिकल फ्लोर ऑन टिटेनियास आईलिड्स वाइल शी वॉज स्लीपिंग। एक और गलती मतलब बदतमीजी उसने क्या करी कि जो जूस था उस फ्लावर मैजिकल फ्लावर का जूस था उसके आईलिड में उसने डाल दिया। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन टाइटेनिया वोक अप एंड सॉ बॉटम। जैसे वो उठती है सबसे पहले उस फॉरेस्ट में वो बॉटम को देखती है। ही वॉज ओनली देयर फॉर रिहर्सलिंग। उस टाइम वो पर्टिकुलर सीन में वो लाइन जो थी वो बॉटम की थी। ठीक है, शी इमीजिएटली फेल इन लव विद हिम, और उससे वो प्यार कर बैठी जैसे ही उठी, क्योंकि वो तो पावर है भाई मैजिक का। शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग हिम विद हर। ठीक है, वो बार बार उसको इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ रहे। दैट वॉज हाउ पक अफेक्टिव बॉटम इनडायरेक्टली। यहाँ पे जो बॉटम जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट का है, क्योंकि ना चाहते हुए भी बॉटम को टिटेनिया के पास क्यों भाई जाए वो, क्योंकि वो तो नहीं जानता ना उसको। दैट इज मीटिंग्स मिस्ट्रेस, यू शुड हैव लिटिल रीजन फॉर दैट एंड इट टू से द ट्रुथ द रीजन एंड लव हार्डली कीप कंपनी टुगेदर नाउ इट इज 44 पैरा। Who was speaking to whom and when? Bottom was speaking to Titania. Bottom उसको समझा रहा बार बार। He said this when Titania woke up, जब वो उठती है, saw him and told him that she had fallen in love with him. ठीक है, जब वो उसको बताती है कि वो उससे प्यार करती है, तो ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है। You should have little reason for what? What has the listener just said? क्या बोला उसने? तो द लिसनर टिटेनिया है, वो उसी से बात कर रहा है। उसने कहा कि शी हैड फॉलन इन लव विद बॉटम। इन रिप्लाई ही सेड दैट शी शुड हैव लिटिल रीज़न फॉर फॉलिंग इन लव विद हिम। वो कहता है कि यार तुम्हारे पास थोड़ा भी रीज़न है मुझे लव करने का, तुमने मुझे देखा और लव। बॉटम को तो समझ ही भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज बॉटम इज़ ह्यूमन ना, उसको तो रीज़न चाहिए ना। पहले मिले होते हैं, कहीं कॉफ़ी शॉपी पिए होते हैं, कहीं डेट वगैरह किए होते हैं, तो थोड़ा सा लव वाला चक्कर होता है, समझ में आता। आपने देखा जस्ट फॉलो इन लव विद हिम, तो लिटिल रीज़न, ही वॉज आस्किंग फॉर अ लिटिल रीज़न। आप समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय रीज़न एंड लव हार्डली कीप कंपनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? बॉटम मीन दैट लव रेयरली फॉलोज रीज़न ऑन लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे बॉटम का मतलब है कि जो लव है ना वो रेयरली फॉलोज रीजन ऑन लॉजिक को, वो रेयरली फॉलो करता है। बी काइंड ऑफ कोर्टियस टू दिस जेंटलमैन, पैरा 43। विच जेंटलमैन डज दिस रिफर? तो ये रिफर हो रहा है बॉटम को टिटेनिया जब अपने फेरीज से बात कर रही हैं। हाउ शुड टिटेनियाज फेरी बी काइंड एंड कोर्टियस टू हिम? कैसे वो होती हैं? तो टिटेनिया टोल्ड बॉटम दैट हर फेरीज वुड अटेंड on him, bring him jewels from the depth of the sea and sing to him while he slept on pressed flower। वो बताती है कि मेरी जो फेरीज हैं, जो मेरी मेड्स हैं, वो तुमको अटेंड करेंगी, तुम्हारे लिए ज्वेल्स लाएंगी सी के अंदर से, तुम्हारे लिए गाने गाएंगी, सिंग करेंगी। और तुमको कब सिंग करेंगी? जब तुम
फ्लावर के बिछे हुए उस पर ना गद्दे पे सो गए, फूलों के बिछौनों पे सो गए तो तुम्हारे लिए सिंग करेंगे। शी आस्क्ड हर फेयरी टू बी काइंड एंड पोलाइट, ठीक है वो तुम्हारे लिए बहुत काइंड होंगे, पोलाइट होंगे। शी टोल्ड देम टू हुप डांस एंड अम्यूज हिम व्हेन ही वॉक, जब भी वो चलेगा तो वो तुम्हारे लिए हुप करेंगे, डांस करेंगे, तुमको अम्यूज़ करेंगे। फेड हिम डिफरेंट फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरीज, पर्पल ग्रेप्स, ग्रीन फिग्स एंड मलबेरीज, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं वो तुमको देंगे, ठीक है। एंड हाउ वो टू हिम, तुमको तुम्हारे लिए वो मतलब तुमको रेस्पेक्ट करेंगे। देन शी आस्क देम टू लीड हिम हर बोअर, ठीक है। देन शी आस्क देम टू लीड, वो तुमको लीड भी करना है, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ स्टोरी इन्वॉल्विंग अ पावरफुल इमोशंस दैट इज मेड ह्यूमरस बाय इट्स कॉमिकल प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं कि ये स्टोरी है जो जिसमें इन्वॉल्व है कुछ पावरफुल इमोशंस, ठीक है, दैट इज मेड ह्यूमरस बाय इट्स कॉमिकल प्रेजेंटेशन। कॉमिकल प्रेजेंटेशन क्या है भाई, शेर के यहाँ पे गधे का फू, तो कहीं ना कहीं मतलब यू नो द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स हु आर वेरी अमेच्योर टाइप्स ऑफ एक्टर, उनका जो एक्टिंग है ना ये कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन देती है ऑडियंस को, ठीक है। और ये जो पावरफुल इमोशन, ये एक जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है भाई, कहीं ना कहीं वो हमारा जो सीन है उसको ह्यूमरस बनाती है। तो व्हाट इज़ द पावरफुल इमोशन? सो इज लव एंड इट्स सडननेस। पावरफुल जो इमोशन है वो तो एक जो लव है वो सडननेस कि वो तुरंत हो जा रहा है, ठीक है, ये एक पावरफुल इमोशन है भाई। What has the writer chosen? Why has the writer chosen to make such a story a comedy? It is written in a comical and a dramatic style to show how ridiculous all the confusions were and how fleeting and fragile love might be. You know, ये लिखा ही गया, it was written in a comical and dramatic style. ये ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा गया है टू शो हाउ रिडिकुलस ऑल कन्फ्यूजन्स, ठीक है, कि सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो कैसे रिडिकुलस है एंड ऑल द कन्फ्यूजन्स वर हाउ फ्लीटिंग एंड फ्रेजाइल लव। लव तो फ्रेजाइल ही भाई, ठीक है, लव कैसा है, कहीं ना कहीं लव हमारा फ्लीटिंग है, फ्रेजाइल है, वो किस हद तक फ्रेजाइल हो सकता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। एप्रिशिएटिंग है क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमिक एलिमेंट ऑफ दिस प्ले, यू कैन चूज़ योर आंसर। कॉमिक एलिमेंट क्या है देखिए बच्चों, पहला द ऑड डिसीजन दैट द एक्टर्स टेक अबाउट हाउ टू स्टेज द प्ले, येस दैट शुड बी, ठीक है। बी द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस ऑफ द प्ले, ये कॉमिक नहीं हो सकता है, ठीक है, अभी तो ऑडियंस को वहाँ पे दिखाया नहीं गया। द प्रैंक्स प्लेड बाय पक, ठीक है, ये प्रैंक ही तो है पक का जो इसको वो कॉमिकल बना रहा है, ठीक है, शेर की जहाँ पे गधे का सर, और फॉल इन लव सडननेस, ये सब क्या है, दैट इज़ द एक्शन ऑफ पक ओनली। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्ले मेड बाय पक, ठीक है, नहीं ये कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कुछ प्ले में तो कर नहीं रहा पक, वो तो खुद यू नो अनाप शटाम चीज़ें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड पैरा 47 अलाउड एंड हाउ एंड वाई हैज़ द राइटर मेड टिटेनिया's स्पीच पर्टिकुलरली म्यूजिकल। So the writer has made Titania's speech particular musical by making the lines of her speech rhyme. अब ये rhyme क्या है, do not desire to go, वो उससे बात करती है तो ये लाइन्स बोलती है, whether thou wilt और मतलब तुम्हारा मन हो और नहीं हो, no common ray stand upon my state and so on. The writer may have done this because Titania is a fairy queen and thus may speak more beautifully and poetically than others human characters. अब ये म्यूजिकल कैसे बना, ये जो लाइन से एक साधारण मनुष्य बोलता, कोई भी साधारण लेडी बोलती तो इतना सॉफ्ट और म्यूजिकली नहीं बोलती जितना कि एक फेरी, तो दैट इज़ वाई इट मेक्स उसका जो स्पीच है ना एक म्यूजिकल टोन निकलता है उस स्पीच में, ठीक है। तो अभी देखिए हर स्पीच में भी सो म्यूजिकल ऑल्सो बिकॉज शी हैड फॉलन इन लव विद बॉटम एंड वॉज एक्सप्रेसिंग हर लव, कि इसलिए भी ऐसा है क्योंकि जी ना जब कोई किसी के प्यार में पड़ता है ना बच्चों, तो प्यार वाली एक लैंग्वेज ही अलग होती है जो कहीं ना कहीं बड़ी मधुर होती है। आपको भी मैं क्या बोलूँ, अभी तो आपको क्लास 7 के बच्चे हैं, हो सकता है आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे।
ठीक है। तो ये जो लव की परिभाषा होती है ना, वो बड़ी सॉफ्ट निकलती है भाई। इस वजह से भी जो उसका स्पीच है वो कहीं ना कहीं म्यूजिकल निकला। आप शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ रहे बच्चों, अगर आगे चल के किसी भी बच्चे ने लिटरेचर लिया तो ये सारी चीज़ें आपको मिलनी है। और देन यू कमेंट मी, ठीक है, कि मैं लिटरेचर लिया हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में लिटरेचर लिया है, तो हम लोग बात करेंगे फिर। ओके, तो आस्किंग हिम टू स्टे विद हिम, ठीक है, प्यार करती है वो उसके साथ रहने को उसको कहती है। इस वजह से ये जो टोन है ना वो म्यूजिकल है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा मज़ा आता है शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ने में बड़े मज़े आते हैं। आई होप कि आप भी एंजॉय करोगे वीडियो को। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करेगा, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। बट अगर आप अपने नाम और अपने क्लास को स्कूल का मेंशन करेंगे, दैट विल बी समवेयर बेटर फॉर मी, मैं आपको थोड़ा और जानूँगी। चलिए, द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स इन दिस टेक्स्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स द रियल थ्री टाइप्स। देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं और जो भी इंसिडेंट्स हैं टेक्स्ट के, दैट इज़ थ्री टाइप्स, है ना। थ्री टाइप्स के कैरेक्टर और इंसिडेंट्स हैं। पहला जो है वो रियल का कैरेक्टर है, दूसरा जो है वो फिक्शनल। एक रियल के कैरेक्टर, फिक्शनल मतलब जो राइटर ने उसको करने को कहा, अकॉर्डिंग टू द राइटर्स है व्हाट द कैरेक्टर्स हैव, दैट इज़ फिक्शनल। ओके, तीसरा जो है वो मैजिकल, एक मैजिकल कैरेक्टर्स हैं, हु आर द पीपल एंड व्हाट द इंसिडेंट्स ईच टाइप। अब आपको इन तीनों ही टाइप्स के पीपल को बताना है, ठीक है, और उनके इंसिडेंट्स को बताना है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द रियल पीपल इन द टेक्स्ट आर बॉटम एंड अदर कैरेक्टर। जो रियल पीपल हैं वो बॉटम है, और जो अदर्स कैरेक्टर हैं जो अभी सबसे स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में मैंने, सबसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको अभी अंडरलाइन किया उनके नेम्स। ओके, फिक्शनल क्या है कि इस प्ले में, इस ड्रामा में, इस सीन में दे आर गोइंग टू स्टे समथिंग, ये फिक्शनल है, ये लिखा गया है राइटर के थ्रू, दैट इज़ फिक्शनल। ओके, वाई दे गैदर टू रिहर्स अ प्ले एंड प्रैक्टिस द परफॉर्मेंस टू टिल पक डिड सम मिस्चीवियस। ठीक है, वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं रिहर्स करने के लिए, उस प्ले के लिए, और प्रैक्टिस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस। कब तक? टिल पक हैड सम, वो तब तक अपना काम करते हैं जब तक पीस जो है वो कुछ मिस्चीफ हरकत नहीं करता। ठीक है, द फिक्शनल पीपल इन दिस टेक्स्ट आर पिरामस एंड थिस्बी। अब फिक्शनल पीपल की बात करें तो ये जो पिरामस कैरेक्टर है, जो ड्यूक है, और थिस्बी हिज अपकमिंग वाइफ। ठीक है, the actors were going to stage a play called Pyramus and Thisbe, and they had to present to be these characters and enact the fictional event in the play. अब ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्टेज अ प्ले जिसका के नाम क्या है? पिरामिस एंड थिस्बी। वो प्ले उन्हीं ड्यूक एंड क्वीन के नाम पर ही उसका उस ड्रामा का जो भी स्टेज करने में उसका नाम रख दिया उन्होंने। एंड दे हैड टू प्रिटेंड टू बी, वो नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दे आर द कैरेक्टर्स इन दैट प्ले। तो दैट इज़ वाई दैट बिकम्स फिक्शनल इवेंट। फिक्शनल कैरेक्टर आपको पता चल गया, ये इवेंट क्या है कि दैट इज़ द दे आर एनेक्टिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ द प्ले। सच एज पिरामिस ड्रॉइंग अ स्वॉर्ड टू किल हिमसेल्फ, और पिरामिस एंड थिस्बी टॉकिंग थ्रू अ चिन इन अ वॉल। ठीक है, ये एक्टिंग है ना कि वो तलवार खींचता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, और द ड्यूक एंड द क्वीन दे आर गोइंग टू टॉक इन अ चिन वॉल। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो प्लीज़ यस में कमेंट करिएगा। फाइनली द मैजिकल कैरेक्टर इन द टेक्स्ट आर पक। अब मैजिकल पीपल क्या हैं? तो पक हो गया, टाइटेनिया हो गया, उनके फेरीज हो गए, और किंग ओबरॉन हो गया। मैंने अभी आपको पहले ऊपर बताया बच्चों। अब मैजिकल इंसिडेंट क्या है कि पक ने जो क्या किया, वो ट्रिक किया, चेंजिंग बॉटम हेड, पुटिंग जूस ऑन मैजिकल फ्लावर टिटेनिया साइस्थन। ये दो तरह के इवेंट हो गए, मतलब इंसिडेंट्स में ना। होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अभी बच्चों हमने सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है बच्चों, दैट मेक सेंटेंसेस विद योर सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम दीज फ्रेजेस एंड क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको इन वीडियोस में डायरेक्ट आंसर इसलिए बता देती हूँ क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोरिलेटिव क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस मैंने अपने ग्रामर के पोर्शंस में एक्सप्लेन कर रखे हैं। अभी आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर पार्ट्स प्लीज़, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि थिंग्स शुड बी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है ये आपको इसमें बताने हैं। पहले का आंसर आपका दे रखा है, दूसरा देखते हैं।
Sarah wondered if there was a gym in a locality. यही सबॉर्डिनेट क्लॉज है भाई. दूसरे में सबॉर्डिनेट क्लॉज यहाँ से है. Why the team looked so sad. In the third, how his grandparents would feel when he left the village. Fifth is Sunil had to know if the teacher would reveal the news in the school assembly. Six is how the loss of a school becomes the loss of a neighborhood. Then the next is why dance was so important to her. What is B? Make sentences using these phrases and questions. Mother asked me, have you prepared your test? Yes. So mother asked me if I had prepared for the test, and I said I had. Like that you have to do. Now number 2. Sarita asked Pranav if Prashant read a lot, and he said that he did not. Okay. Number 3. Gopal asked Saif if he could join them for a game of cricket, and he readily agreed. See, narrative things have been given. Narration, direct and indirect types of things have been given here. Now, Nandita asked Harsha if he would try the local cuisines, and he said that he certainly would. My neighbors asked us whether we were visiting the Pink City, and we replied that we were. ठीक है, आंसर है इसमें है भाई. अब देखिए जो सी पार्ट है स्टूडेंट्स. ग्रामर फन, दैट इज अप टू यू, ट्राई योर सेल्फ. वर्ड्स इन यूज में देखते हैं. द वर्ड प्ले हैज मेनी मीनिंग. फाइंड एट लीस्ट द 3 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड as used in the text. Explain with example. Let us see. The 3 meanings of the word play are as used in the text are: first is play, meaning a drama, a group of ordinary people plan to stage a play. दूसरा देखते हैं play, to play a role, meaning to enact a role. Bottom was going to play the role of Pyramus. और जो तीसरा है the play, to play, that is a trick, meaning of to crack a practical joke. Puck plays a trick on bottom. ठीक है, ये हो गया. अब ये बी देखिए क्या है. कह रहा है कि टिक येस द करेक्ट मीनिंग the correct meaning of the highlighted words as used in each of these sentences, then make a sentence using the other meaning of the same word. I paid the shopkeeper with 50 rupees note. तो यहाँ पे 50 रुपीज़ नोट क्या है बच्चों? बी है ना, पीस ऑफ पेपर यूज्ड एज मनी. तो आई लेफ्ट अ नोट फॉर माई मदर सेइंग आई मे बी लेट. ठीक है. दूसरा है इट विल फेयर टू सेलिब्रेट विदाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम. जस्ट एंड करेक्ट होगा और फाइन और ब्राइट होगा. इट इज़ फेयर, फाइन एंड ब्राइट होगा. इट इज़ योर टर्न. अभी मैं आपको सेंटेंस भी दिखा देती हूँ आंसर में. इट इज़ योर टर्न टू थ्रो द डाइस नाउ. उसका मतलब अपॉर्चुनिटी और अ चांस. ठीक है. देखिए फिर देखिए, ये मैंने अभी बताया. जो तीसरा मैंने ये बताया, बी केयरफुल वाइल ड्राइंग रूम इन द नेक्स्ट. तीसरे का आंसर ए है, दूसरे का आंसर बी है ऑप्शन में बच्चों. चौथे में देखिए बी है. ठीक है, चौथे का ऑप्शन बी है. इसका जो सेंटेंस है मैं आपको बता दूं, बी आंसर है. माय फ्रेंड्स फैमिली हैज़ मूव्ड हियर फ्रॉम अ नेबरिंग स्टेट. देखिए चौथे का बी है. मदर विल बी सो एंग्री इफ़ शी सॉ द स्टेट ऑफ माई डेस्क. यहाँ पे स्टेट कंडीशन से मतलब है. ठीक है बच्चों. अभी जो सेंटेंस था मैंने आपको बताया. व्हाट काइंड ऑफ प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम. काइंड का मतलब यहाँ पे टाइप है. ठीक है, टाइप. 6 है द स्टोरी मूव्स बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. तो यहाँ पे ये टाइम को शो कर रहा है. लेट अस सी द सेंटेंस प्लीज. द काइंड जेंटलमैन फीड्स द स्ट्रे एनिमल्स every day. I have the perfect present and future, a mobile phone cover. ठीक है बच्चों. सी देखिए क्या कह रहा है. मेक sentences as suggested. Use green room to describe how the characters were using the Hawthorne break. चलिए देखते हैं.
The characters was using the hot front break as a green room. They planned to represent the wall by putting suitable makeup on an actor. The queue for Pyramus to re-enter the stage was never dire. Vince, being the promoter, helped the others with their lines. It was the day of the final show, and the characters were busy backstage preparing for the play. 6. The detailed stage directions told the actors how to move and speak during the play. ओके बच्चों, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं भाई राइटिंग सेक्शन में. देखिए, इमेजिन दैट यू आर पक, नरेट व्हाट हैपन इन द सीन इन अ फ्यू पैराग्राफ. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करने हैं बच्चों. प्लीज़ रीड इन योर बुक. आई विल बी गिविंग आंसर ये डायरेक्टली. अगर आप पक है तो आप क्या लिखेंगे, क्या नरेट करेंगे? दैट इज़ गिवन हियर. आफ्टर आई फाउंड द फ्लावर दैट द किंग हैड नेम्ड, आई एक्सट्रैक्टेड इट्स जूस एंड वेंट लुकिंग फॉर द क्वीन. I found the queen, but I also found a group of others, some artisans, apparently rehearsing for a play. What an amusing rehearsal it was! I have never heard anyone say the lines of Pyramus in that manner. They had noticed neither the queen nor me. It was too good an opportunity to throw away. I decided to have some fun at their expense. Before long, the actor who was playing Pyramus came away. This was my chance. I played a trick on him. I changed his head into the head of an ass. He looked so strange that I could hardly stop myself from laughing out loud. I could not wait to see how his fellow actors would react to his new head. I hid near the actor. No sooner had the man with the ass head returned to the rehearsal than the others started exclaiming and running away. How I loved to see them. When everyone had run away, scared, the man started pacing to and fro, and singing, just to show that he was not frightening. His singing woke up the queen. I had already put the magical juice on her eyelids, so she fell in love with him as soon as she set eyes on him. The man with the donkey's head, as she began talking to him. I thought I should go and tell the king about the success of both my tricks. So I left the place quietly, chuckling to myself. So student, that was the writing skill from the chapter, and in this way we have completed all the chapters, poems and exercises, everything, the solution, all full solution from the session. ठीक है, इस तरीके से हमने क्लास 7 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया. सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको इस वीडियो में दे रखे हैं. इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एवरी चैप्टर एवरी पोएम विल बी गेटिंग देयर. मुझे होप है कि वो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए. और अब मैं क्लास 8 की तरफ बढ़ूँगी. उसमें भी मुझे लगता है कि 1 और 2 चैप्टर्स रिमेन है, तो दैट विल बी फिनिश्ड. और फिर उसके बाद क्लास 1 to 4 के चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी. तो चलिए भाई, एन्जॉय योर नेक्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, द प्ले. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच.